Good morning, girls. I, Anuradha Sharma, lecturer education, welcome you again in my class of education. Hope you all have started enjoying study at home, but I suggest you should sit in the environment at home which enhances your learning, which enhances your studying capacity. And to make best use of time, you should make a timetable and follow it regularly. So girls, today we'll take up Unit 6, Human Growth and Development. After going through today's lecture, you will be able to answer what do you mean by the term growth. Means growth किसको कहते हैं, and you will also be able to answer what do you mean by the term development. Means I will give you the complete concept of growth and the complete concept of development. और आज का लेक्चर सुनने के बाद you will be able to differentiate growth from डेवलपमेंट मीन्स बहुत से स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दे आर सेम. No doubt they are interrelated to each other, but still they are different from each other. So after going through today's lecture, you will be able to differentiate growth from the development. Here in this picture you can see that growth is the increasement of different organs of the body and their activities. Means growth जो है that growth and development is an important characteristics of all living beings. So it is very natural and biological process. फॉर एग्जाम्पल कि आपके घर में एक न्यू बेबी आता है, न्यू बेबी बॉर्न होता है आपकी फैमिली में, तो आफ्टर 5 years जब आप उसको देखोगे तो दैट he or she will change entirely because of growth and development. Because उसके organs, उसकी body जो है वो growth and development show करेगी, और उसको 5 साल बाद देखोगे, उसको 10 साल बाद देखोगे तो उसकी body जो है वो बिल्कुल change हो चुकी होगी. On the contrary, अगर आप घर में एक टेबल लाते हो और एक जगह रख देते हो and after 5 years you will see that table क्या वो grow करेगा? No. Because ये non-living things do not show this characteristic of growth and development. And moreover, growth and development they are complementary to each other. ये दोनों complementary हैं एक दूसरे के साथ, because one without other is incomplete and imperfect. एक दूसरे के बिना ये incomplete हैं. They are just like the two sides of the same coin which cannot be separated from each other. जैसे एक कॉइन के दो साइड्स होती हैं, इसी तरह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी ये साथ साथ चलती हैं. नो डाउट दे आर डिफरेंट बट दे गो साइड बाय side, and growth represents the entire structure and infrastructure of life, whereas development represents the all progressive development of the life. So you have to understand कि growth and development जो है ये साथ साथ चलते हैं but they are still different from each other. Firstly, we will understand the meaning of growth. Growth किसको कहते हैं? So growth is physical and external in nature. ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ इज एक्सटर्नल इन नेचर. फॉर एग्जाम्पल आप एक बच्चे को 2 साल के बच्चे को देखते हो, फिर आप उस सेम बच्चे को 6 months बाद या 1 साल बाद देखते हो, तो आप कहते हो ये तो बड़ा हो गया. बड़ा हो गया मीन्स कि उसकी हाइट बढ़ गई, उसके हैंड्स लंबे हो गए, उसकी आर्म्स लंबी हो गई, उसकी लेग्स लंबी हो गई, उसका वेट बढ़ गया. तो उसी बेसिस पे आप ये कहते हो कि ये तो बड़ा हो गया. तो दैट जो चीज आप देख के ऑब्जर्व करके उसको बोल सकते हो, दैट थिंग इज ग्रोथ. मीन्स ग्रोथ इज एन इंडिकेशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स और बॉडीली डायमेंशंस. उसके बॉडी पार्ट्स को देखकर, उसकी बॉडीली डायमेंशंस को देखकर जब आप अंदाजा लगाते हो तो दैट इज कि उसमें क्या हुई है? ग्रोथ हुई है. दैट इज हाइट एंड वेट, and it generally confines to the quantitative changes. Quantitative changes means जो कि आप जिसको मेजर कर सकते हो. मीन्स उसकी हाइट means कल अगर उसकी 2 feet थी अब 2.5 feet हो गई है,
3 फीट हो गई है, तो आप उसको मेजर कर सकते हो। वेट अगर कल उसका 10 kg था, अब 15 kg हो गया, तो आप किसी का भी वेट या हाइट उसको मेजर कर सकते हो। तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव चेंज, इसमें क्वांटिटी वेरी करती है। एंड इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ बॉडी बिकम्स लार्जर, हैवियर एंड लॉन्गर। तो हमारी बॉडी क्या होती है लिविंग बींग्स की? लार्ज होती है, हैवी होती है, लॉन्गर होती है। मीन्स इन सिंपल वर्ड्स, growth means increase in size, height and weight or volume. It implies growth of heart, brain, muscles and body in general. तो बॉडी बाहर से भी तभी ग्रो करेगी जब अंदर से हमारे ऑर्गन्स, हमारा हार्ट, ब्रेन, मसल्स, बॉडी, पूरी बॉडी जो है जब हमारी ग्रो अंदर से इंक्रीज होती है तो बाहर से भी उसका हाइट और वेट और वॉल्यूम जो है वो बढ़ता है। सो इट कैन बी easily observed and measured. मीन्स ग्रोथ को हम आसानी से देख के ही हम बोल सकते हैं कि इसमें ग्रोथ हुई है और हम उसको मेजर भी कर सकते हैं। सो ग्रोथ जो है वो मेजरेबल है और ऑब्जर्वेबल है, हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। कोई भी इंसान, एक लेमैन भी देख के बोल सकता है कि दैट पर्सन, दैट चाइल्ड इज शोइंग ग्रोथ। सो डिफरेंट एजुकेशनिस्ट्स हैव गिवन different definitions of growth. So according to the first definition that is given by L.H. Scott, वो कहते हैं कि growth necessarily involves changes in body properties as well as structure and weight. growth क्या है? चेंज इन द बॉडी, हमारी बॉडी प्रॉपर्टीज में जो चेंज होती हैं, हमारे स्ट्रक्चर में, हमारे वेट में जो चेंजेस होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। तो सो सेकेंडली, क्रो एंड क्रो, he says growth is defined as structural and psychological changes in the individual. हमारे जो स्ट्रक्चर में, हमारे साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो हमारी बॉडी में होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। एंड थर्ड डेफिनेशन इज गिवन बाय फ्रैंक. फ्रैंक सेड growth is defined as multiplication of cells. मीन्स ग्रोथ में क्या होता है? हमारे सेल्स क्या होते हैं? मल्टीप्लाई होते हैं। जब हमारे सेल, मैंने पहले ही भी बोला था, ग्रोथ क्या है कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस भी है। तो हमारे 1 से 2, 2 से 4, इसी तरह से जो हमारे सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं, उसी के कारण क्या होता है? हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है। सो ग्रोथ इज डिफाइंड, ऑल्सो डिफाइंड एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ cells. Now comes the meaning of development. Development क्या होती है? Development is a lifelong process. Development एक lifelong process है which starts from conception and ends till death. ये death तक हमारी जो है development होती रहती है. And the child passes through various developmental stages. एक बच्चा बहुत सारी developmental stages से गुजरता है. So development refers to the functional changes in the organism. Okay, I said development refers to the functional changes in the organism. functional changes से क्या मतलब है कि हमने ग्रोथ में भी पढ़ा, ग्रोथ की हम एक बच्चे को देखते हैं, हम देखते हैं इसका हैंड्स जो है वो बड़े हो रहे हैं, मीन्स उसमें ग्रोथ हो रही है। तो उस हैंड्स के बड़े होने के साथ साथ अगर वो उन हैंड्स के साथ किसी भी चीज को पकड़ नहीं पा रहा, किसी भी चीज को ग्रिप नहीं कर पा रहा है, मीन्स दैट उस हैंड का फंक्शन जो है वो इम्प्रूव नहीं हो रहा है। तो इट मीन्स कि उसमें डेवलपमेंट नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आई सेड गो साइड बाय साइड। नॉर्मली एक बच्चे में क्या होता है, जब उसके हैंड्स बड़े होते हैं, तो जब हैंड्स बड़े होते हैं, पहले वो छोटी चीजें हम उसको पकड़ाते हैं, उसके हाथ से गिर जाती हैं, फिर धीरे धीरे उसकी ग्रिप जो है वो स्ट्रांग होने लगती है, फिर वो धीरे धीरे चीजों को पकड़ना शुरू होता है। पहले वो अपनी मदर की उंगली ही पकड़ता है, उसी को स्ट्रांगली उसको होल्ड करता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे टॉयज, छोटी छोटी चीजें वो ग्रिप करता है। फिर उसके बाद अगर एक 5 साल का बच्चा, आप उसको एक कप दोगे, वो भी एक अच्छे से दोनों हाथों से उसको पकड़कर वो उसको रख सकता है। मगर अगर एक 5 साल का बच्चे को अगर आप एक पेन दे रहे हो हाथ में, अगर वो पेन भी उसके हाथ से गिर जाता है, मीन्स उसके हाथ तो बड़े हो गए बट उस हाथ के फंक्शंस जो हैं वो इम्प्रूव नहीं हुए। मीन्स दैट चाइल्ड इज शोइंग ग्रोथ बट दैट चाइल्ड इज नॉट शोइंग द डेवलपमेंट।
means it is the expansion of capacities of the individual which improve functioning. means development में क्या होता है, हमारी capacity जो है वो expand होती है. it is the expansion of the capacities of the individual. जब हमारी capacity increase होगी which improve functioning. फॉर एग्जाम्पल लेग्स हैं, एक बच्चे की लेग्स हैं, वो लंबी तो हो गई, लेकिन अगर नॉर्मली बच्चे के जब लेग्स बड़ी होती हैं वो खड़ा होता है, फिर वो धीरे धीरे चलना सीखता है. मगर अगर उसकी लेग्स लंबी हो गई, वो खड़ा नहीं हो पा रहा है और वो चल भी नहीं पा रहा. अगर एक 5 साल का बच्चा चल नहीं पाता, मीन्स उसमें ग्रोथ तो हुई है बट उसके फंक्शन, उन लेग्स के फंक्शन जो है वो इम्प्रूव नहीं हुआ है. मीन्स ही इज शोइंग ग्रोथ बट ही इज नॉट शोइंग द डेवलपमेंट. सो डेवलपमेंट क्या हो गया कि जो ग्रोथ के साथ साथ उसके फंक्शंस भी इम्प्रूव होने चाहिए. जो पार्ट जो बड़ा हो रहा है, जिसका हाइट, जिसकी वेट जो है वो ग्रो कर रहा है, मगर उसके साथ साथ जो उसकी कैपेसिटी है, जो उस पार्ट का फंक्शन है, वो भी इम्प्रूव होना चाहिए. सो इट इंक्लूड्स फंक्शनल चेंजेस इन फिजिकल, सोशल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ द पर्सनालिटी. मीन्स डेवलपमेंट में फंक्शनल चेंजेस जो होनी चाहिए, हमारे फंक्शंस जो है वो इम्प्रूव होने चाहिए. फिजिकली भी, मीन्स जैसे हाथ का काम होल्ड करना है, पकड़ना है, वेट उठाना है, अगर वो नहीं कर पा रहा है मीन्स उसमें डेवलपमेंट नहीं हो रही है. सोशल डेवलपमेंट मीन्स कि अगर बच्चा किसी को देख के कोई भी रिएक्ट नहीं करे, ना उसको हंसी आ रही है, ना उसको रोना आ रहा है, वो सेंसलेस है, तो मीन्स ही इज नॉट शोइंग द सोशल डेवलपमेंट. सेम इज द इमोशनल डेवलपमेंट मी कि अगर उसको किसी, उसकी सराउंडिंग्स में, उसके एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मीन्स ही इज नॉट शोइंग इमोशनल डेवलपमेंट. और उसको कोई भी चीज याद नहीं रहती, वो कोई भी चीज को ग्रास्प नहीं कर रहा है, मीन्स ही इज नॉट शोइंग द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. मीन्स ये सभी तभी होंगी जब डेवलपमेंट के अंदर ये सब जो है फिजिकल, सोशल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स में फंक्शनल चेंजेस होती हैं. दैट चेंजेस इज नॉट एज द डेवलपमेंट. In strict sense, now you should understand the definition of development. Development refers to change in structure, form or shape and improvement in functioning. This line is very important. Improvement in functioning. Change in structure, form और shape तो growth में भी होती है, मगर इसमें क्या difference है? There is improvement in functioning. It is a continuous hereditary and environmental process. ये डेवलपमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है. धीरे धीरे हमारे हर पार्ट्स जो हैं उनकी कैपेसिटी जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, उनके फंक्शंस जो हैं वो इम्प्रूव करते जाते हैं, विच अकर स्टेप बाय स्टेप. सो बीइंग अ क्वालिटेटिव चेंज. अब ये क्या है? डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव चेंज. इसमें क्वालिटी, ठीक है, आप इसको मेजर नहीं कर सकते हो कि इसका आज कल कितना उसने ग्रिप कर किया, आज कितना ग्रिप किया. आप सिर्फ इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, आप उसको मेजर नहीं कर सकते. बिकॉज आप बच्चा कितना चल पा रहा है, वो खड़ा हो रहा है या चल पा रहा है, आप उस चीज को मेजर नहीं कर सकते. आप उसको सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हो कि इसकी टांगे लंबी हो गई मगर ये चल क्यों नहीं पा रहा है, मीन्स इसमें डेवलपमेंट में कुछ कमी है. तो उसको आप सिर्फ क्या कर सकते हो? ऑब्जर्व कर सकते हो. सो इट इज अ डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव चेंज. इट इज अ क्वालिटेटिव चेंज. इट कैन नॉट बी मेजर्ड. ठीक है, तो ग्रोथ जो थी वो क्वांटिटेटिव चेंज थी, उसको आप क्वांटिटी मेजर कर सकते हो, मगर जो डेवलपमेंट है इसमें आप देख के तो लगता है कि ग्रोथ हो रही है, बट जब तक उसके इम्प्रूवमेंट, उसके फंक्शंस में इम्प्रूव नहीं हो रहा, तो यू कैन नॉट से कि इसमें डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही. सो डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव चेंज. So some of the definitions given by various educationists and psychologists are, first is Peary. Peary says development means the whole sequence of life from conception to death. तो development में पूरी sequence है life की, from conception to death. means बच्चा कैसे पैदा होता है, फिर वो बैठना, क्रॉल करना, खड़े होना, चलना, उसके सोशल, इमोशनल सारी सीक्वेंस ऑफ लाइफ जो है दैट इज development. Then Herlock says
It can be defined as a progressive series of changes in an orderly, coherent pattern. Means development क्या है? ये एक प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस है इन एन ऑर्डरली. और एक ऑर्डर होता है ना, पहले बच्चा बैठना सीखता है, फिर क्रॉल करना, फिर खड़े होना और फिर वो चलना. ये थोड़ी कि पहले वो चलना सीखेगा फिर बाद में वो बैठना सीखेगा. तो एक प्रॉपर ऑर्डरली कोहेरेंट पैटर्न होता है जिससे डेवलपमेंट होती है. सो इट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस इन एन ऑर्डरली कोहेरेंट manner. So in simple words, development means improvement in thinking, intelligence, attitude, bodily functions and understanding. So it is the improvement in the functioning of the body. After understanding the concept of growth and डेवलपमेंट, अगर आपको दोनों का कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया है कि हम ग्रोथ किसको कहते हैं और डेवलपमेंट किसको कहते हैं, यू कैन इजीली डिफरेंशिएट बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. So here I am giving you some points of the difference between growth and development. So इसमें पहला point है, growth refers to increase in size, height or weight or other bodily changes which can be seen. So growth क्या है? Increase हमारे size, height, weight और body में वो changes जो हम देख सकते हैं. And development refers to the outcome of functioning of organs. तो development क्या है कि उन organs की functioning से क्या हमें outcome मिलती है. It implies change in shape, form or structure resulting in improvement in the functioning. तो इसमें क्या result होता है? Improvement in the functioning. Means development leads to the improvement in the functioning. Second point is growth is external in nature. ये हमने पहले भी किया. And development क्या है? Development is internal in nature. We can only feel it. Development internal होती है but हम उसको easily feel कर सकते हैं कि ये इसमें improvement हो रही है या नहीं हो रही. The third point of difference is growth refers to a particular part of the body. Growth जो है वो एक particular part को denote करता है. But development implies on the body as a whole. तो development generally पूरी body में होती है. Growth एक part में होती है but development implies on the body as a whole. Fourth point is growth is quantitative in nature. That point we have also discussed earlier कि ये quantity, ये मात्रा पे निर्भर करता है. growth क्या है? ये quantitative in nature है. इसको हम measure कर सकते हैं इसलिए ये quantitative in nature है. और whereas development is qualitative in nature. quality क्या होती है? गुण किसी चीज का. तो हम it is a qualitative in nature. Fifth point is growth is limited and stops at certain level of maturity. तो growth हर इंसान में एक level तक होती है ना. हम अलग अलग stages से गुजरकर एक level आता है जब हमारी growth जो है वो stop हो जाती है. एक particular height पे जाके हम रुक जाते हैं. हमारा वेट तो नो डाउट किसी भी स्टेज पे थोड़ा आगे पीछे होता रहता है बट फिर भी एक लेवल के बाद जो है वो उतना डिफरेंस नहीं आता हमारी शेप में, हमारी हाइट में, हमारे वेट में. मींस ग्रोथ जो है मैच्योरिटी पे आके जो क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है. बट डेवलपमेंट इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस फ्रॉम वॉर्म टू टॉम. मीन्स फ्रॉम कंसेप्शन टिल डेथ जो है वो डेवलपमेंट चलती रहती है. चाहे वो फंक्शंस की फिजिकल फंक्शंस में इम्प्रूवमेंट हो मगर सोशली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली हम लाइफ में जो है इम्प्रूव करते रहते हैं. हमारी फंक्शनिंग इम्प्रूव करती रहती है विद द एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ. सो डेवलपमेंट क्या है? इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस फ्रॉम वॉर्म टू टॉम. Sixth point of difference is कि growth is a part of development and it is a narrower term. Growth क्या है? Growth is just one of the part. It is just one of the ingredient of the development. तो ये growth एक बहुत ही narrower term है. ये पूरी हमारी जो development का सिर्फ एक
पार्ट है, ये सिर्फ हमारी फिजिकल डेवलपमेंट है, बट फिजिकल डेवलपमेंट को हम ग्रोथ कहते हैं। एंड डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज अ वेरी वास्ट, इट इज वाइडर एंड comprehensive term. It is very unlimited and vast term. इसमें सारे social, emotional, intellectual हर aspect जो है हम development के अंदर study करते हैं. Then seventh point of difference is growth can be measured or observed by units of measurement. तो ये भी हम काफी डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रोथ को हम easily measure कर सकते हैं और इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं बाय यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। मींस बच्चे का वेट 2 kg है, फिर 5 kg है, 10 kg है, हम उसको इजीली मेजर कर सकते हैं। उसकी हाइट क्या है, एवरीथिंग कैन बी मेजर्ड, बट डेवलपमेंट कैन बी ऑब्जर्व्ड और वॉच्ड बाय सिंपल नोटिंग द चेंजेस। ठीक है, डेवलपमेंट को हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये इम्प्रूव कर रहा है, ये उसके फंक्शंस इम्प्रूव कर रहे हैं या नहीं। हम उसको वॉच कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसमें कैसी चेंजेस आ रही हैं, बट इट कैन नॉट बी मेजर्ड, हम उसको मेजर नहीं कर सकते। Then the eighth point of difference is growth is natural, spontaneous and automatic. तो growth क्या है, एक natural process है, ये हमारे अंदर naturally होती जाती है, spontaneously होती जाती है, एक automatic process है। But development can be accelerated by some effects. अगर हम उसको अच्छी इफेक्ट्स मीन्स अगर हम एक्सरसाइज है, अगर बच्चे के हैंड्स जो हैं वो वीक हैं, हम उसको एक्सरसाइज करवाते हैं, लेग्स वीक हैं, उनको हम एक्सरसाइज करवाते हैं, तो हम उस डेवलपमेंट को बढ़ा सकते हैं। जैसे एथलीट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं बाय एक्सरसाइज और अदर डाइटरी फैक्टर्स। तो उन सब चीज़ों से हम अपनी डेवलपमेंट को एक्सेलरेट कर सकते हैं। Then ninth is growth affects only physical features of an individual. Growth जो है सिर्फ हमारे फिजिकल फीचर्स को ही अफेक्ट करते हैं। मीन्स हमारा साइज, हमारा हाइट, हमारा वेट, हम कैसे दिखते हैं, दैट अफेक्ट्स द ग्रोथ। एंड डेवलपमेंट इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो डेवलपमेंट में हमारे सारे एस्पेक्ट्स, हमने पहले भी कहा, हमारे फिजिकल, सोशल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल सारे एस्पेक्ट्स जो हैं दैट इज इंक्लूडेड इन द डेवलपमेंट। एंड ग्रोथ में और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट। ग्रोथ में और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट। जैसे हमने कहा हाथ बड़ा हो गया मगर अगर उसके फंक्शंस इंप्रूव नहीं हो गए तो उसमें सिर्फ ग्रोथ हुई है, उसमें डेवलपमेंट नहीं हुई है। लेग्स लंबी हो गई हैं मगर अगर उन्होंने अपना काम करना शुरू नहीं हुआ, मीन्स ग्रोथ अक्कर उसमें हुई है बट उसमें डेवलपमेंट नहीं है। तो ग्रोथ बिना, उसके साथ भी हो सकती है, मे मीन्स डेवलपमेंट के साथ भी तो होती है और उसके बिना भी हो सकती है। बट डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑल्सो इज ऑल्सो पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। डेवलपमेंट भी हो सकती है विदाउट ग्रोथ, क्योंकि कुछ बच्चों के हाथ पाँव छोटे रह जाते हैं, उनकी हाइट इतनी इंक्रीज नहीं होती, बट वो फिजिकली, इंटेलेक्चुअली जो है, सोशली, इमोशनली बहुत स्ट्रांग होते हैं। सो दोनों, ग्रोथ भी डेवलपमेंट के बिना हो सकती है और डेवलपमेंट भी ग्रोथ के बिना हो सकती है। तो जनरली हमने कहा कि दे गो साइमल्टेनियसली, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। बट समटाइम्स growth may occur, may or may not bring to development, and sometimes development is also possible without growth. Thank you students. I hope you have completely understood the concept of growth and development. So it is basically the disappearance of old features and acquisition of the new features. तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा what do you mean by growth and development. Go through it again and again, learn करो इसको. Tomorrow we will take up the next topic of this unit, growth and development.